Warm greetings, everyone. Welcome to the 22nd episode of Dalim's podcast. I'm Yashasvi Rai, and today amongst us we have the president of Dalim Sunbeam Group of Schools and Hostel, Dr. Pradeep Baba Madhok, and today we'll have an interesting and fun conversation with him. So to start with, we would like to know what a typical day for the president look like. Hmm. Well, I'm an early riser. I get up early and I go to the temple. The first thing I do in the morning. Then I work out, and by 9:30, I'm in my office. That's how I start my day, and then I end up in between. I take a break for about 3 hours, wherein I play golf every day. Yes. And then after hours, around evening, say 7:30 or so, then I again get back into working and I work till say about 10:30. That's exactly how our day is planned on a normal planned day. That's a very balanced day, I must say. Not much things to do. So can you share the history of Dalims with us? Yeah, we want to know about, like, can you walk us through the origins of Dalim Sunbeam School? Well, I know the origins, but very for the very audience. adventurous. Yeah. This is a story which has a lot of adventure, emotions, actions, and when I go through the journey of Dalims, so this all basically started way back in September 1992. I was hardly 24. And then we decided that we should branch out from the school, that is that Sunbeam English School. And this was all inspired by our mother, the founder mother of Sunbeam Schools, Mrs. Dish Ishrat Madhok. And this was supported, the idea was supported by my wife, Pooja Madhok, at that time. And Mahir was not even born. No, I was born. You were born in 93, 93 yeah, December. 93, So sorry. this all came in. If I talk the exact date, I know the exact date also. That was 26 September 1992. तो आप तो साहब दिसंबर 28 को पैदा हुए 93 में. So this is how it all began, beta. Or the first school that we opened was in the session of 1994, and that was in Laurabir, or near the crossing. वो ब्राइट स्टूडियो टेलर्स हैं उनके पीछे there was a building. So we started with that, and it was quite a roller coaster ride, because we had the name of Sunbeam that was establishing during those days, but then we had to fight a lot of negative publicity also, that ये वो सनबीम नहीं है, ये दूसरा सनबीम है. बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जिसको कि हम लोगों ने मिलके फाइट किया. पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया बेटा, बिकॉज अवर मदर मैडम मधोक, इशरत मधोक जो थी, शी वॉज well known in the society as the pioneer of private education in Varanasi. So that's how it all started. And from day one, I took care of the administration, the finances, transport, discipline. इसको बहुत हम लोगों ने concentrate किया. And Madam Pooja Madhok, because she had done her Bachelor of Education and other courses, so she took care of academics. A super boss हम लोग की माँ, वो ऊपर, because she was a hardcore teacher. तो वो हमेशा ट्रेनिंग में और आगे बढ़ने में ऐसे लगते थे. और दिस वाज फ्रॉम अ वेरी हम्बल बिगिनिंग. देन thereafter we took over the सिगरा स्कूल. वो भी किराए की बिल्डिंग पे था. फिर धीरे धीरे हम लोगों ने उसको ख़रीदा. फिर
सबसे एडवेंचरस जर्नी में इस दौरान था जो रोहनिया स्कूल है। उसके ऊपर आई वांट यू टू गो थोड़ा सा इन डेप्थ हाँ। रोहनिया स्कूल के बारे में। आई वाज वेरी यंग, आई रिमेंबर, एंड मुझे याद है रोहनिया स्कूल का पूरा वो मॉडल बना रहता था। अभी भी हम लोग के पास फ्लैट पड़ा हुआ है कहीं पे। हाँ। एंड देन रोहनिया स्कूल को बनाना इट वाज प्रीटी मच इम्पॉसिबल। अगर आज के ज़माने में भी कोई देखे, कोई इम्पॉसिबल ही समझेगा कि वो जगह क्या थी और आज क्या बन गई ये जगह। तो कैन यू गो इन डेप्थ अबाउट रोहनिया स्कूल? Well, this was again in about July of 1997. Yes. तो हम लोग एक स्कूल के प्रोग्राम में थे बेटा, दैट वाज इन लोहरा बीर, और एक आदमी का फ़ोन आया मुझे कि साहब एक बहुत बड़ा एक ईंटे का भट्टा है, यू नो वेयर पीपल यूज टू मेक ब्रिक्स, इवन टुडे दे मेक ब्रिक्स लाइक दैट। सो ऐसी जगह क्या होती है कि बहुत गहरी जगह हो जाती है, और जब बारिशें आती हैं ड्यूरिंग मानसून से अबाउट अगस्त सितंबर के महीने में, वो अपने आप एक टेम्परेरीली एक तालाब, बहुत बड़ा सा पॉन्ड बन जाता है। सो रोहनिया स्कूल जब हम जुलाई में आए इसको देखने, इस लैंड को, सो यो उस वक्त थोड़ा थोड़ा बारिशें होनी शुरू हो गई थी, तो इतना बड़ा जगह, और वो भी एक तालाब के जैसे, और उसके ऊपर हाई टेंशन की वायर्स गई हुई। और मैं अच्छी तरह मुझे याद है बहुत लोग गांव वगैरह के यहाँ पे जो है कोई मछली पकड़ने आ रहा है तो कोई ऐसे ही यहाँ पे बैठा है, ओपन में पॉटी करने के लिए बैठ रहे हैं, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। और द फर्स्ट थिंग आई केम हियर वाज that person who brought me here. So कहता साहब आपके पास पैसा ऐसा तो है नहीं, तो अब जितना पैसा है उसमें ऐसी जगह मिलती है तो देखे हम। मैं कहा ठीक है, पैसे का तो इंतज़ाम चलो हो जाएगा, जगह इतने पैसे में मिल रही है, बना लूँगा। कहे आप श्योर हैं बाबा भैया? सो यू सी द ऑफिस वेयर आई सिट नाउ डेज, वो एक गैराज था बेटा उस वक्त, वो टूटे फूटे ट्रक वहाँ खड़े होते थे, तो वहाँ पे खड़े थे हम लोग। मैंने कहा हाँ कर लेंगे कुछ तो। सो द सेकेंड थिंग दैट आई डिड वाज, इसको ख़रीदने से भी पहले यहाँ पे बेटा एक बहुत बड़ा एक किला हुआ करता था, गंगापुर रोड इसको बोलते हैं। अब तो बहुत डेवलपमेंट हो गया ना, अब तो वहाँ स्टेडियम वो सब भी आ रहा है। हाँ अभी बहुत डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ पे। वहाँ पे एक बहुत बड़ा राजा बलवंत सिंह है वहाँ के जो पहले राजा साहब थे, तो उनका एक फोर्ट था बेटा पुराना, जैसे काइंड ऑफ अ हवेली, वो पूरी मिट्टी खंडर सब था। सो पहले मैं उनके पास गया, जाके मैं कहा राजा साहब, उससे उनके कोई थे मिले, मैं कहा सर अगर मैं ये सारी मिट्टी आपकी मुझे आप दे दें जितना वो है, तो आपको ज़मीन पूरी मिल जाएगी, और मुझे कहीं मिट्टी डालनी है वहाँ मैं मिट्टी डाल लूँगा। सो ही एग्रीड हैप्पीली। कहते ठीक है। फिर बड़ी प्रॉब्लम, उसको ट्रांसपोर्ट कैसे करें बेटे? उस ज़माने में यू सी दिस नेशनल हाईवे जो बाईपास रोड बन रही है अब ये जो पास में है, सो वो दिस वाज इन द मेकिंग। तो वहाँ पे ट्रक्स वाले कुछ थे, उनसे रिक्वेस्ट करके कि साहब इस तरह करना है और मेरी हेल्प करिए, तो दे से ठीक है चलो, मेरे शाम को ट्रक्स खड़े रहते हैं, तुम डीजल का पैसा दे दो, उठवा देते हैं। सो दैट इज़ हाउ, एंड यू ऑल विल बी सरप्राइज दैट बाय काउंटिंग आई टेल यू more than 10,000 trucks of mitti was brought into this campus. Yeah, I remember this. And beta, I tell you one thing, एडवेंचरस भी था, क्योंकि जब ये मिट्टी डलती रही तो मैं यहीं पे एक चारपाई लगा के रात को सो भी जाता था और हम लोग मजाक करते थे, वो जो लोग मछली उछली पकड़ रहे होते हैं बारिश के पानी में आ जाती हैं मछलियाँ, उनसे हम क्या यार सुनो अभी मछली खिला दो, सेहत अभी बनी रहेगी, तुम लोग भी खाओ, बाद में तो यहाँ बन जाएगा स्कूल हमारा, तो ये काम होगा नहीं। सो दिस इज़ हाउ रोहनिया केम इन existence. And similarly our Ramkotora was also very adventurous. It was in the year 2004 and मुझे पता चला कि साहब टुल्लू एंड सिडनी फैंस एंड टुल्लू पम्प्स, इनकी एक फैक्ट्री है टुल्लू पम्प बनाने वाली, तो ये फैक्ट्री जो है वो ओनर्स वो बंद कर रहे हैं एंड दे वांट टू मेक अ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। एंड आई मस्ट अप्रिशिएट द जेंटलमैन Mr. Sharad Kumar Shah,
जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे टुल्लू पम्प्स के। तो मैं उनसे मिला, मैंने कहा कि भैया आप ये फैक्ट्री बंद कर रहे हैं, क्या मैं ये ले सकता हूँ फैक्ट्री, मुझे बेच दीजिए। तो हंसते हुए बोले कि आपका कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है? नहीं है साहब। क्या करेंगे आप? हम कहे साहब हम बच्चे बनाएंगे, हमारा यही काम है कि बच्चों को शिक्षा देंगे, बीच शहर में ये जगह रहेगी, अभी लोहरा बीर पे हमारा एक स्कूल है उसको मूव करेंगे, और मशीनें आपकी हैं, सब कुछ आपका है, आप लेते जाएं। सो देन ही एग्रीड समहाउ because he wanted to make all multi-storied buildings. So there we have one multi-storied building which he made, but then he sold us the balance of his land. So that is how Ram Katora School came in existence. और एडवेंचरस उसमें दो चीज़ें हैं जो मुझे इमोशनल चीज़ें हैं मेरे लिए, कि मैं शुरू से ही बेटा मोटर बाइक्स का बहुत ही मुझे शौक था, हॉबी थी। तो मैं साइकिल से, वो भगवानपुर स्कूल में हम सब रहते थे उस वक्त, वहाँ से आया करता था राम कटोरा, क्योंकि शरद शाह जी की मोटरसाइकिल देखने के लिए जब व्हेन आई वाज इन क्लास 9th और 10th, आई एम टॉकिंग अबाउट 1983-84, दोज वर द टाइम, आई स्टिल रिमेंबर। मैं उनके गेट के बाहर खड़ा रहता रहा, जो आज तुम्हारा राम कटोरा स्कूल है बच्चों, और पूछता था चौकीदार से कि सर कब निकलेंगे? कहता था सामने से हटो, सामने से हटो, साहब आएंगे अभी, साहब आएंगे। सो आई यूज्ड टू स्टैंड देयर लाइक दिस। वो अपनी रेड कलर की राजदूत यामाहा 350 URZ 3320, आई स्टिल रिमेंबर द नंबर। हाँ, उससे वो बाहर निकलते थे। तो मैंने उनसे बोला, शरद भैया से, जब ये जगह खरीदी हम लोगों ने, हम उनको बताया, आई टोल्ड हिम दैट एज अ यंग मैन, young boy, school going student, I used to come look for your bike. He became emotional, उनके आँख में आंसू आए, कहे कि हाँ बेटा तुमको पसंद है मोटरसाइकिल? यस। और एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू उन्होंने तो बेच दी थी, हम लोगों ने वो मोटरसाइकिल वापस ली, और वो बाइक अभी भी, एक मेरे फ्रेंड हैं आदित्य गुप्ता, हाँ, उनके कई एजेंसीज हैं बनारस में, या सो उन्होंने वो बाइक अभी भी रखी है, और कभी कभी मैं उसको चलाता हूँ। सो दिस इज व्हाट हाउ द रोलर कोस्टर, व्हाई आई कॉल दिस रोलर कोस्टर। सो कैन यू टेल अस अबाउट बॉब जिम, क्योंकि आपका एक और वेंचर है बॉब जिम, एंड देन दिस इज अ वेरी पैशनेट वेंचर, एंड आई थिंक मोर देन अ बिजनेस इट इज अ हॉबी फॉर यू, और हम सब लोग के लिए इट इज अ हॉबी, एंड बॉब जिम इज not something where we go to for मतलब business mind से. So please tell us about Bob Gym and Bob Gym के origins. Very interesting. Well, Bob's Gym बेटा का origin जो है यानी वो सही बोले तो मेरे स्टूडेंट लाइफ में ही हो गया था, बिकॉज हम लोग बेटा आई स्टार्टेड स्पोर्ट्स इन 1982, जब क्लास में 8th पास कर रहा था, तभी से स्पोर्ट्स की तरफ बहुत पैशन हो गया। और वो पैशन के लिए मेरे फादर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि उन्होंने जो है मुझे अखाड़े भेजना शुरू किया। सो आई यूज्ड टू गो तुलसी घाट अखाड़ा, वहाँ पे अखाड़ा खोदना, कुश्ती लड़ना, शिवाजी हॉल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, क्योंकि मेरे फादर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, पर्शियन के HOD भी थे। सो वहाँ पे अब अखाड़े के दिनों से उठ के उस वक्त ऐसे जिम्स हुआ करते थे बच्चों, जिसमें कि धूल मिट्टी, फिर वहाँ जाओ तो वो गुरु वाला कल्चर मुझे आज तक याद है। वो हमारे गुरुजी हुआ करते थे उस ज़माने में, 80s में, चंद्रमणि यादव, बिग मसल्स। सो वो जो हैं जब जाओ इतनी दूर से साइकिल चला के क्लास 8th में 9th में, वो वैसे से सुर्ती खाते रहते रहे, अपनी बड़ी बड़ी मसल दिखाते हुए, अरे पहले झाड़ू लगाओ आज जिम नहीं खुलेगा। सो उस वक्त एक बड़ा टीस उठती थी कि जिन लोगों को एक्सरसाइज करना है, जिनको फिट रहना है या स्पोर्ट्स करना है, वो हम लोग कितना डिपेंडेंट हैं ये गुरुजी कल्चर में। और मैं उस वक्त भी अपने फ्रेंड्स को बोलता था उस ज़माने के, कि ज़िंदगी में यार किसी लायक हुए ना तो अपना एक जिम बनाऊंगा,
ताकि जिन लोगों को एक्सरसाइज का शौक है वो कभी भी आके एक्सरसाइज करें। इसीलिए शायद मैं भी बनारस में जितने भी टॉप के जो स्पोर्ट्समैन हुए हैं, यू नेम एनीबडी, बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट के, पावर लिफ्टिंग स्पोर्ट के, वेट लिफ्टिंग स्पोर्ट के बेटा, और एथलेटिक्स के, ये कहीं ना कहीं से ये बॉब्स जिम में ही एक्सरसाइज करते रहे। दे हैव ऑलवेज बीन कनेक्टेड, क्योंकि बॉब्स जिम was built on emotions, on passion, on compassion, with lot of dreams. So on 11th of September 1995, basically this came in existence because there was kahin na kahin one more reason, that see, education and health, what my thought process was, that if we put these two things together, so if we put these two things together, there is all success in life. You don't go back. आप शिक्षित हो, पढ़ाई अच्छी हो और आप सेहतमंद हो, you have a good health, there is no reason to fail anywhere you go. So ये एक विजन था, मोटो था, that is why I took up this step. और वो भी हमारे लिए कहीं ना कहीं से लोगों ने काफ़ी नेगेटिव पब्लिसिटी किया कि ये स्कूल चलाते हैं, ये स्कूल के, उस वक़्त आई वॉज द सेक्रेटरी ऑफ आवर स्कूल्स, स्कूल के सचिव होते हुए भी ये जिम कैसे कर रहे हैं, या ये स्पोर्ट्समैन है, ये जिमिंग करता है, ये स्कूल कैसे चलाएगा। बट मेरा हमेशा से पब्लिक में इंटरेक्शन यही था, जो आज भी बोल रहा हूँ, कि एजुकेशन एंड हेल्थ आर टू साइड ऑफ वन कॉइन. So that is how Bob's Gym came in existence, and today we have more than 2,000 people every day going to our gyms, and even during COVID, so many gyms they closed. We had many brands in Banaras, और बहुत बड़े बड़े मल्टीनेशनल ब्रांड्स भी थे, वो सब बंद हो गए, पर बॉब्स जिम कभी नहीं बंद हुआ और ना कभी अब ये बंद होने वाला है. Bob's Gym as a brand, as a gym will never close. I'll tell you why. Because Bob's Gym is not a business. First and foremost, Bob's Gym is passion. It's a passion project. तो passion projects कभी बंद नहीं होते. As simple as that. So, okay. तो आगे मैं आपकी लाइफ के एक और पार्ट में आना चाहूँगा इसके बाद. What I've experienced आपकी लाइफ में, that is, you were the president of Indian Bodybuilding Federation. उसके बाद you were the only Indian to be the president, the chairman of the World Bodybuilding Federation. Yes, I was the president of World Bodybuilding Federation as well as the World Strongman Federation. Yes, वो उसके बाद में आया था World Strongman. So I want you to tell us about your stint in World Bodybuilding Federation and Indian Bodybuilding Federation. Well, I became, इसके लिए थोड़ा सा पीछे जाते हैं. I became the president of Uttar Pradesh Bodybuilding Association way back in 1995, the year I opened this. And उस टाइम में एक चीज़ मैं चाइम करूँगा, उस टाइम ये पूरे फेडरेशंस में कोई ऑर्डर नहीं होता था. सो डैट वेंट इन, इन्होंने पूरी कॉर्पोरेट लेयर उसके ऊपर लगाई थी. इट वाज ऑल मतलब बस हेयर टाइप में था. बेटा वो ज़माना था स्पोर्ट्स का कि मुझे आज तक याद है कि हम लोग जब जाते रहे, जब मैं यूपी प्रेसिडेंट बना तो पहला इनकाउंटर क्या था कि मुरादाबाद में एक चैम्पियनशिप हो रही है उत्तर प्रदेश की, और अचानक से वहाँ पे झगड़े फसाद, हिंदू मुस्लिम के स्लोगन्स चलने लगे, कुर्सी टेबल लोग फेंकने लगे, जान बचा के भागने की नौबत होने लगती रही. मतलब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा, कोई ऑर्डर नहीं था, है ना. एक आदमी माइक पे बोले जा रहा है कि भाई पीछे हटो पीछे हटो, फिर भी सारे जो बॉडी बिल्डिंग फैंस हैं या बॉडी बिल्डर्स हैं स्टेज पे चढ़े जा रहे हैं. बॉडी बिल्डर्स वर इल ट्रीटेड. पहलवान है, छोड़ो, ये तो पहलवान लोग हैं, ना खाने को देना, ना अच्छा सा उनको रहने का करना, समोसे वो भी पुराने पुराने गले, ये उनको जो है रिफ्रेशमेंट में दिया जाता रहा बॉडी बिल्डर्स को.
पैसे के नाम पे कोई कैश अवार्ड नहीं, रादर जो मेडल्स भी दे रहे हैं वो इस तरह के देते रहे कि स्टेज से उतरे नहीं कि मेडल के ऊपर से सब छूटने लगे, दैट काइंड ऑफ थिंग, पैथेटिक पैथेटिक पैथेटिक। तो मैंने सबसे पहले 1996 में, द फर्स्ट ईयर आई स्टार्टेड बॉब्स क्लासिक चैम्पियनशिप्स, और इस चैम्पियनशिप में इंडिया में पहली बार मैंने इंस्पायर होके, हालांकि मेरे इस चीज़ में इंस्पिरेशन थे मिस्टर समीर थापर, जो JCT के चेयरमैन थे, क्योंकि उन्होंने मुझसे पहले 1 साल के लिए ऐसा अवार्ड वाला कंपटीशन इंडिया लेवल पे करके छोड़ा था। सो मैंने स्टेट लेवल पे 1996 में पहली बार कैश अवार्ड करके चैम्पियनशिप करवाई, और ऑर्डरली सब कुछ किया कि कैसे वेइंग इन वज़न होगा सब खिलाड़ियों का, जितने स्पोर्ट्समैन आ रहे हैं उनको अच्छी जगह रहने को दिया, डाइट फूड अच्छा सा दिया, अंडे खिलाना बच्चों को, दूध पिलाना, इस तरह का, मतलब गुड डाइट फूड जिसको बोले, कार्ब्स उनको प्रॉपर देना। उसके बाद अवार्ड, उस ज़माने में मेरे ख्याल से 1 लाख रुपए अवार्ड रखा 1996 में। दैट वाज बिग मनी, इन्फ्लेशन के हिसाब से, यस दैट वाज अ बिग अमाउंट। और मज़ेदार बात क्या थी कि जिन लोगों ने मुझे प्रॉमिस किया था स्पॉन्सर करने को, वो सब भाग खड़े हुए, और हालत ये हो गई कि मुझे कहीं कहीं से अपने पास ही पैसों का इंतज़ाम करके मुझे उन प्लेयर्स को देना था। लेकिन मेरी भी ज़िद थी कि नहीं, ये बॉडी बिल्डर्स, ये स्पोर्ट्समैन, दे डिज़र्व अ बेटर ट्रीटमेंट, बिकॉज समहाउ समवेयर मेरे साथ ये हमेशा से रहा कि आई वॉज नॉट टेकन सीरियसली वे बैक इन 1992, 4 साल 5 साल पहले, इस 97 96 के पहले, कि मुझे उतना सीरियसली नहीं लिया जाता रहा एज एन एडुकेशनिस्ट, एज अ ह्यूमन बीइंग, कि ये क्या है, ये तो स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्समैन अक्लमंद तो होते नहीं हैं, स्पोर्ट्समैन की अक्ल तो घुटने में होती है, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो मैं ये प्रूफ करना चाहता रहा, और मैंने वो प्रूफ किया कि स्पोर्ट्समैन जो है वो एक नॉर्मल जो पर्सन है, लेमैन है, या आम जिंदगी में जो है, जिसका स्पोर्ट्स से, हेल्थ से, एक्सरसाइज से कोई रिश्ता नहीं है, हम स्पोर्ट्समैन उस आम आदमी से लाइट अहेड, लाइट स्पीड अहेड हम लोग का थॉट प्रोसेस होता है। जब तक एक आम आदमी बेटा, जो नॉर्मल पर्सन है, जो एक्सरसाइज नहीं करता हो, कोई स्पोर्ट्स में नहीं हुआ नहीं, वो जब तक एक ही सोचता है, हम जो स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स माइंडेड लोग हैं, हम लोग उतनी देर में 3 चीज़ सोच लेते हैं, बिकॉज द टाइमिंग बिटवीन डिसीजंस हैज़ टू बी वेरी फास्ट। और वो मैंने अपने बिजनेस लाइफ में, अपनी स्पोर्ट्स लाइफ में और एजुकेशन में वो मैंने करके भी दिखाया। सो दिस इज़ ऑल्सो वॉज वेरी इम्पॉर्टेंट। और ये इस तरह हम लोग 96 में पहली बार कैश अवार्ड लेके आए इसके अंदर। फिर उसके बाद 1999 में आई बिकेम द वाइस प्रेसिडेंट, एंड 2007 आई बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन। वो भी बहुत ही एडवेंचरस था। गुवाहाटी के असम में बेटा ये इलेक्शंस थे, और उस वक्त वहाँ पे सिविल ऑर्डर अच्छा नहीं था, टेररिज्म थोड़ा बहुत था वहाँ, उल्फा और वगैरह वगैरह जो टेररिस्ट थे, और इलेक्शन हो रहा था बेटा। उस वक्त जो है मैंने अपनी प्रेसिडेंशियल स्पीच दी। मुझे नहीं मालूम था कि भीड़ में कुछ लोग जो मेरी हुटिंग कर रहे हैं या जो मेरे साथ बुरा बर्ताव करना चाह रहे हैं, अनरूली हो रहे हैं, राउडी हो रहे हैं, वो उनका बैकग्राउंड क्या है। मैं सामने कुर्सी छूट के मैं उनके पास गया, मैंने कहा कोई प्रॉब्लम है तो हमसे सॉल्व कर लो, क्या दिक्कत है भाई, खेल के लिए हम लोग सब हैं। दे वर ऑल क्वाइट, एंड आफ्टर द इलेक्शन, आफ्टर आई वन द प्रेसिडेंट इलेक्शन, मेरा एक फ्रेंड था, उसने मुझे धीरे से बोला, तुमको मालूम दे वर ऑल आर्म्ड पीपल, ये उल्फा के टेररिस्ट से जो बैठे थे, दे कुड हैव किल्ड यू।
मैं को उस वक्त तुम बताते तो मैं डर जाता ना, और डर जाता तो पता नहीं क्या होता, तो इसलिए कई बार अननोइंगली भी होता है। इसी तरह से व्हेन आई बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट, व्हेन आई बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक्स स्पोर्ट्स फेडरेशन, इसका पूरा नाम है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग WBPF बोलते हैं या वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन बोलते हैं। उस वक्त भी इसके जो प्रेसिडेंट थे वो बेटा एक शेख साहब थे। फुजरा इज़ अ प्लेस इन UAE। हाँ, तो हाँ, मुझे हंसी आ रही है ये सोच के, क्योंकि वो इतने बड़े आदमी, प्रिंस वहाँ के, अब ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड फेडरेशन। अब हम लोग बनारस के रहने वाले, उनके सामने वी आर स्मॉल टाइम और नोबडी। तो मैंने ना बेटा एक स्लोगन दिया, मैंने कहा ये जो शेख हैं ये स्पोर्ट्स को खरीद नहीं सकते। दिस वॉज द स्लोगन। एक तो इससे मेरी इलेक्शन में बहुत हेल्प मिली एज वर्ल्ड प्रेसिडेंट, एंड आई मस्ट टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग अलॉन्ग विद दिस। द पर्सन हु सपोर्टेड मी was none other than a man from अफगानिस्तान। वो अफगानिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट थे, बाबर खान होतक। वो बनारस आपको भी बेटे की तरह बाद में मानने लगे थे। सो वो उसने उठ के इतना अच्छी स्पीच दिया, इमोशनल स्पीच दिया, और उसके साथ में मुझे जिसने सेकंड सपोर्ट किया वो आप लोग सब ताज्जुब करोगे, वो पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग का प्रेसिडेंट था फारूक इकबाल। उसने बोला, उसके प्रेसिडेंशियल जो मेरा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था उसका सपोर्ट में उसने ये बोला कि हमारे दोनों देश एक दूसरे की सियासत में बहुत अलग हैं। पॉलिटिक्स इज़ वेरी डिफरेंट इन टू कंट्रीज़, और मुझे नहीं मालूम कि पाकिस्तान जाके मेरा क्या हाल होगा। उसने ये बोला मुझे, फारूक इकबाल ने। वो लाहौर से हैं, आज भी हमारे दोस्त हैं, कभी कभी बाहर हम लोग मिलते हैं। सो उसने बोला कि मुझे नहीं मालूम, मुझे वापस जाऊंगा मैं पाकिस्तान में, मुझे ज़िंदा छोड़ा जाएगा, मुझे रखा जाएगा क्या, लेकिन ये हमारा भाई है, इसने खेल के लिए हमेशा काम किया है और खेल को मजबूत किया है इसने। इसकी वजह से उसने मेरे लिए बोला कि पूरे साउथ एशिया में, पूरे साउथ एशियन कंट्रीज़ में, यानी इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, ये 7 कंट्रीज़ में उसका कहना था कि ओवरऑल जो स्पोर्ट्स का डेवलपमेंट हुआ है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से हुआ है, एंड फॉर स्पोर्ट्स रीज़न आई एम सपोर्टिंग हिम। और जब पूरी दुनिया 140 कंट्री हैं बेटे इसके मेंबर उस वक्त थे। सो जब 140 देश के लोगों ने देखा कि अरे एक पाकिस्तानी हो कि वो इंडियन का सपोर्ट कर रहा है, और एक अफ़गान वो एक इंडियन के लिए फाइट कर रहा है आगे खड़े होकर, और मैंने जो स्लोगन दिया कि ये शेख हमें खरीद नहीं सकते, तो वन साइडेड लैंडस्लाइड विक्ट्री, आई बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बॉडी। मिस्टर बाबर खान जो थे उन्होंने मुझे ही फौजी बनाने की कोशिश की थी बड़ी। हाँ, और ये छोटे से थे और आके बहुत छोटे भी नहीं थे उस वक्त, 10th 11th में। हाँ, और मुझे अच्छी तरह याद है एक दिन सवेरे इनका दरवाज़ा खड़ा टम 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 टम, तो ये अंदर से जवाब ना दे, तो इनको बोलते थे फौजी बाहर निकलो, वर्जिश करना है, वर्जिश। फौजी निकले ना बाहर, फौजी साहब अंदर। फिर मुझे कहता है भाई फौजी बागी हो गया। तो ऐसे में बाद में था, और सो दिस इज हाउ इट वाज, एंड आई वाज द वर्ल्ड प्रेसिडेंट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। 2010 से 2017 आई रिटायर्ड, 7 years, एंड ड्यूरिंग दीज डेज बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत अच्छा था। आगे आपको बताऊंगा वजह क्या थी छोड़ने की। नहीं, उसी के ऊपर आना चाह रहा हूँ। व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट द करंट स्टेट ऑफ इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन? हाँ, एक्चुअली वे बैक इन 90s and early 2000 there was only one association, one federation, one body
which was regulating the sport of बॉडी बिल्डिंग, जो इस बॉडी बिल्डिंग खेल को रेगुलेट करता था बेटा। उसके बाद इस गेम के अंदर इतना करप्शन आया, जो मशीन बेचने वाले लोग हैं, फिटनेस मशीन्स, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे बॉलीवुड के स्टार्स जो हैं वो प्रमोट करने बॉडी बिल्डिंग को लगे, स्पोर्ट्स को लगे, ठीक। फिर कहीं ना कहीं जैसे मैंने द ग्रेट खली, जिसको आप समझते हैं, दलीप सिंह, आप तो जानते हैं, आप छोटे से थे, आपको गोदी में उठा के घूमते रहे। अभी भी, अब तो बहुत अच्छे, मतलब अभी भी बहुत सारे रिलेशन है उनके। हाँ, सो ये जो ग्रेट खली हैं बेटा, ये हमारे पास रहते रहे हमेशा। मैं इनको अलग अलग शोज़ में ले जाता रहा, और ये हालत थी बेटा कि दलीप सिंह, जिनको आप ग्रेट खली बोलते हैं, ये मुझसे बोलते थे, गुरुजी ये आदमी मेरे साथ तस्वीर लेना चाहता है, मुझे 100 रुपये दिला दो। वो 100 रुपये लेके तस्वीर खिंचवाते थे। यस, उनके फिर हम लोग, क्योंकि वो देखने में भी अजीब थे, 7 फुट 2 इंच लंबे, उनके शो रखवाते थे जगह जगह। फिर बॉलीवुड फिल्म्स में भी बहुत ज़्यादा एक्टर्स, कुछ एक एक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने कि फिज़िक का प्रदर्शन किया। हालांकि ये चीज़ तो क्लासिक सिनेमा धर्मेंद्र के टाइम से चली आ रही थी। तो इस तरह करके बहुत सारे मशीन वाले लोग, क्योंकि जिम कल्चर बढ़ने लगा, ये स्पोर्ट्स में आ गए, जिसको इन लोगों ने करप्ट करना शुरू किया। आई टोल्ड यू अबाउट पैशन, राइट? सो पैशन वाली चीज़ थी बॉडी बिल्डिंग, उसमें बिजनेसमैन ये सब चले गए एंड दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर देयर ओन इंटरेस्ट। हाँ, उन लोगों को इससे नहीं मतलब था कि प्लेयर्स क्या कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको अपना बिजनेस चलाना था इस फेडरेशन में घुस के। और बिजनेस इज अ गुड थिंग। हमने उसको बहुत रेगुलेट किया। मैंने उसको ऐसे रेगुलेट किया कि जितने ये मशीन्स वाले हैं, फूड सप्लीमेंट्स वाले हैं, ये स्पोर्ट्समैन को स्पॉन्सर करें, खेल को बढ़ावा दें, और स्पॉन्सरशिप के एवज में, इन ल्यू और इन रिटर्न फेवर टू दिस पीपल, हम लोग उनको काफ़ी स्पेस देते थे जगह पे। उनको बॉडी बिल्डर्स को मॉडलिंग के लिए उनको दे देते रहे, उनके इक्विपमेंट्स के लिए। पर एक स्टेप आगे जाके जो खासकर सप्लीमेंट वाले लोग हैं, इन लोगों ने स्टेरॉयड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ बॉडी बिल्डिंग खेल में शुरू करवा दिया, इन ऑर्डर कि ये जो स्टेरॉयड से बॉडी बिल्डर की इतनी मसल्स आ रही हैं या ओवर ग्रोन फिजिक होती जा रही है, ये मेरा प्रोटीन पाउडर खाने से हो रहा है। सो करप्शन बहुत ज़्यादा इसके अंदर लाए, और चूँकि अब उनके ये भूख बढ़ती गई, तो इसलिए उन्होंने लोकल एसोसिएशंस बाइफरकेट करके बनानी शुरू कर दी, नए नई फेडरेशंस बनाने लगे। हार्डली 20-25 स्पोर्ट्समैन को लेके कहीं भी, थाईलैंड में, दुबई में, दूसरी जगह, इन बच्चों से, इन खिलाड़ियों से पैसे एक्सेस लेके, 1-2 लाख रुपए इनसे लेके, वहाँ पे ये लोग एक छोटे से होटल के कमरे में पीछे बैनर लगा देते हैं कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप, हाँ, और उसमें डमी प्लेयर्स खड़ी करके, और फिर वहाँ पे वो अपना उनके शो करवाते हैं, और गोल्ड मेडल अपने किसी को दे दिया। फिर इंडिया में आके उसको प्रमोट करते हैं कि ये देखो नया वर्ल्ड चैम्पियन है, ये देखो नया मिस्टर यूनिवर्स है जो मेरे प्रोडक्ट को लेके आगे बढ़ा। सो इतना प्रॉब्लम्स होने लगी, और स्टेरॉयड यूज़ इतना अब्यूज़ में बदल गया, बाय द ईयर 2016 ये एक महामारी की तरह फैलने लगी चीज़। मेरी आंख के सामने कितने बॉडी बिल्डर्स मरे हैं, मेरे अपने जानने वाले ओवरडोज ऑफ स्टेरॉयड से मर गए। इंडिया में कोई रेगुलेशन नहीं है स्टेरॉयड यूज़ को रोकने के लिए। इसका फ़ायदा उठा के स्मगल करना स्टेरॉयड्स को, खिलाड़ियों में देना, और अपनी अलग अलग छोटी छोटी फेडरेशंस बना के, सो कॉल्ड
आगे बढ़ते रहना। सो इतना ज़्यादा अब्यूसिव हो गया ये गेम। और अगर मैं उंगली पे ही गिनूँ तो बनारस का ही बॉडी बिल्डर एक था, अनिरुद्ध चैटर्जी, ही यूज्ड टू कॉल मी पापा। Yeah, I know. हाँ, उसको हमने पाला पोसा, कैसे Very कैसे sad story. उसको किया, ओवरडोज ऑफ स्टेरॉइड। 2020 में I think he died. हाँ, because of- he died. जवान आदमी, ही मस्ट बी हार्डली नॉट इवन 30 year old। इस तरह के लोग मरने लगे, हार्ट डिजीजेस होने लगी। अभी भी इस शहर में कितने ऐसे लोग हैं, हमारे शहर में, इस रीजन में ही, जो कि स्टेरॉयड यूज़ के लिए अब्यूज़ जिसको मैं बोलता हूँ, इतना एक्सेसिव है कि उनको बहुत सी प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम। सो मुझे ये लगने लगा कहीं ना कहीं ऑन वन साइड कि ये ओवर यूज ऑफ स्टेरॉयड, दिस इज नॉट स्पोर्ट। ये वो खेल है ही नहीं जिसके लिए हमने अपना ब्लड एंड स्वेट दिया, जिसके लिए खून दिया हो। हमने खून ही दिया बेटा, हमने इतनी मेहनत की इस खेल को बढ़ाने में। ये वो खेल ही नहीं रह गया। एक तरफ ये आ गया, दूसरी तरफ अब ये जो मशीन वाले हैं, ये जो सप्लीमेंट वाले हैं, इन लोगों ने ब्राइब करना शुरू किया हमारी फेडरेशंस को, उनके ऑफिशियल्स को, कि आप उनके जो प्रमोट किए हुए स्पोर्ट्समैन हैं उन्हीं को मेडल दें। कई बार एज अ वर्ल्ड प्रेसिडेंट, जो मैंने रिज़ाइन किया फाइनली, मुझे अच्छी तरह आज तक एक वाक़या याद है कि ये चैम्पियनशिप वियतनाम में थी 2015-16 के आसपास। रात को मेरे कमरे में हमारे जो वर्ल्ड के सेक्रेटरी जनरल हैं दातुक पॉल चुआ, इन लोगों ने एक आदमी को भेजा, मैसेज दिया कि आपको मिलना है इनसे। ठीक है, मिल लेते हैं। तो दातुक पॉल चुआ एक ऑनेस्ट आदमी थे, वो मेरे गॉडफादर हैं। He was also my local guardian when I was in college. हाँ, जब ये सिंगापुर में थे, ही इज़ द गॉडफादर, आई ट्रीट हिम। वो मेरे गॉडफादर थे बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट के। उन्होंने बोला कि बेटा ये लोग बात करेंगे तुमसे, दे वांट टॉक टू यू। सो आई सेड ओके, सेंड देम। एंड दोज पीपल दे सेड दैट मिस्टर मधोक, लुक हियर, this bodybuilder from China should get the gold medal tomorrow morning. I go, no, if he is not deserving, he is not getting. नहीं, आपको जो चाहिए आपको मिलेगा। There is $10,000, $10,000 नीचे आदमी लेके बैठा है, तुम हाँ बोलो, तुम खुद दे। I got so annoyed, मैंने कहा अरे मैं $10,000 लेके क्या मैं अपने देश को बेच दूँ? हो सकता है मेरा इंडिया का लड़का वर्ल्ड चैंपियन बन जाए, कल एशिया चैंपियन बन जाए, नहीं होगा। अब देखो बेटा, ये एक मेन रीज़न हुआ मेरे छोड़ने का। क्या हुआ, मैंने तो रोकता था मैं, लेकिन जो रेफरीज बैठे हुए हैं, देर आर नॉर्मली 7 रेफरीज डिसाइडिंग हु विल गेट व्हाट मेडल एज पर देयर परफॉर्मेंस, वो उनको ब्राइब कर दिया और उसका मन माफिक रिजल्ट आ गया। चाइना वॉज गिवन द गोल्ड मेडल। सो दैट ऑल दीज इंसिडेंट्स वर वेरी हार्ट ब्रेकिंग, दिल टूटता था। सो वन डे आई डिसाइडेड हाँ कि ये करप्शन नहीं बंद होने वाला, और बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट तो मेरे खून में है। मैंने आज सवेरे भी बेटा वर्कआउट किया, जिस दिन मरूंगा वर्जिश करके मरूंगा, तो मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ ऐसे लोगों के ऊपर। तो ये सोच के मैंने रिज़ाइन किया, और मैं एक अकेला वाहिद ऐसा प्रेसिडेंट हूँ जो कि वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग से, इंडियन बॉडी बिल्डिंग से, एशियन बॉडी बिल्डिंग से मैंने उस वक्त रिज़ाइन किया जब मैं अपने पीक ऑफ माई कैरियर में था। लोग मुझे बहुत मनाने आए, सब हुआ। मैं तो कॉलेज उसी टाइम आया था। हाँ, बच्चे लोग भी देखे, विटनेस किए, पर मैंने कहा कि मैं इस पाप का भागीदार नहीं बनूंगा जिसमें कि इतना स्टेरॉयड अब्यूज़ हो गया है, जिसमें मेडल्स को बेचते हैं ये ऑफिशियल्स, जिसमें
ऑफिशिएटिंग भी, इलेक्शंस भी जो हैं वो पैसे का खेल बनते जा रहे हैं। अब वही लोग डिस्ट्रिक्ट के, स्टेट के सेक्रेटरी या ऑफिस बियरर्स होंगे जो पीछे से इन मशीन वालों के डीलर होंगे, या इन सप्लीमेंट को बेचने वालों के डीलर होंगे, या स्टेरॉयड बेचने वाले लोग होंगे। ये बेटा आगे आने लगे। और मेरी बात की सच्चाई का प्रूफ ये है कि आज 2 साल या 3 साल हो रहे हैं, 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बॉडी बिल्डिंग खेल से अपनी रिकग्निशन या एफिलिएशन विड्रॉ कर ली बिकॉज ऑफ ऑल दिस करप्शन। और वो खेल जिसको हम लोगों ने बचपन से आँख में एक संजो के ले गए थे, एक अखाड़े से उठा के जहाँ पे लोग गले हुए समोसे खिला रहे हैं, वहाँ से लेके जब मैंने छोड़ा इस खेल को तो 1 करोड़ रुपए बेटा प्राइज मनी होने लगे थे। ऐसे टूर्नामेंट तक के गए। सो ये एक सफलता थी। और आज इसमें अच्छे लोग भी हैं, बहुत अच्छे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उन बेचारों को मौका नहीं है क्योंकि चारों तरफ से इतने सारे करप्शंस हैं और इतनी सारी एसोसिएशंस हैं कि खिलाड़ी को खुद नहीं पता है कि कौन सी एसोसिएशन में खेलना चाहिए, किस में नहीं खेलना चाहिए। और दिस इज़ नाउ अ डार्क साइड। अब ये एकदम अंधी गली बनी है जब तक कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके ऊपर कुछ रेगुलेशन नहीं डालते हैं फिर से। ओके, नाउ वी क्लोज दिस चैप्टर। इसके बाद अब हम लोग सीधे सिर्फ हैप्पी चीज़ों पे आते हैं। व्हाट आर द थ्री बिगेस्ट पिलर्स ऑफ योर इन्फ्लुएंस इन योर लाइफ? 3 लोग जो सबसे ज़्यादा हु हैव इंस्पायर्ड यू इन योर लाइफ। My mother and my father and inspired. So my mother, my father and me myself. मेरा नाम लेंगे बट नहीं। मैं अपने आप को खुद इंस्पायर करता हूँ। अब अगर तुम सपोर्ट की बात करो, सो सबसे ज़्यादा सपोर्ट एक फैमिली का सपोर्ट रहा है, उसके बगैर यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। और कुछ एक ऐसे स्पेशल लोगों का सपोर्ट रहा है जो कि मेरे लिए एक अननोन एंजल बन के लाइफ में आए और भगवान की तरह मेरे साथ साथ चलते हैं। मुझे लगा मेरा नाम लेंगे, ठीक है। नहीं, अगर आप वैसे बोलेंगे तो आपका नाम इटसेल्फ, लोग आपको माहिर जानते हैं, पर आपको मालूम है इनका नाम इटसेल्फ मेरा इंस्पिरेशन का नाम है, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर के नाम met Arnold Schwarzenegger इस बार लास्ट ईयर we were in US. We almost met him. हम लोग बस चांस की बात है, हम लोग उस टाइम वहाँ पे नहीं थे। वो वहाँ पे ही वर्क्स आउट एवरी डे एट वेनिस बीच में। वहाँ पे एक जिम है LA में, गोल्ड जिम, दी ओरिजिनल गोल्ड जिम जो था, बस अब वही रह गया एक गोल्ड जिम जो है। मैं एक बार मिला था बेटा, और 2014 में बुदापेस्ट में मैं एक बार उनको मिला था, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर को। और उस ज़माना था जब वो उनके नाम का, ही वॉज गोइंग टू ऑस्ट्रिया, ग्राज के वो रहने वाले हैं, तो वहाँ पे उसके नाम का एक स्टेडियम बना आर्नल्ड के नाम का। तो बहुत बड़ा एक कंपटीशन वहाँ पे बुडापेस्ट में हो रहा था जिसका नाम था फिट परेड, और बीइंग द वर्ल्ड प्रेसिडेंट आई वाज देयर। तो वो ऐसा फ्लैशी मोमेंट था, शायद मे बी 10 सेकेंड की मुलाकात, 5 सेकेंड की मुलाकात, और मेरे लिए ऐसे था जैसे साक्षात मेरे सामने भगवान खुदा प्रकट हो गए हों, खुद कुछ ऐसा। और मेरा दिमाग भी नहीं काम किया
ना, और मैं आज तक पछताता हूँ कि मैंने उनके साथ एक तस्वीर क्यों नहीं नहीं, खिंचवाई। बट यू स्पोकन टू हिम मेनी टाइम्स ऑन फोन, हाँ, बॉडी फोन बिल्डिंग पे, के रिगार्डिंग तो यस बहुत बार यस, की है। जब वो आर्नल्ड क्लासिक स्टार्ट किए तो मेरे से बात हुई थी। इनफैक्ट जो IFBB, जो इनका जो आज वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग में जो प्रोफेशनल लीग है, उसके रूल सारे मैंने बनाए थे सन 2010 के आसपास, उससे पहले। इस बार हम लोग मिलने वाले थे पर हम लोग ऑलमोस्ट मिस कर गए हाँ, वहाँ पे। ओके, ओवर टू यू। या So, what is your educational philosophy? Like, what do you think is the best way to educate a child? The first education starts at home, parents. The second education starts in school, the teachers and the motivators like us. The third education, when you get these two educations, so the quality of these two education take you to the third level where you are educating your own self. जब आप बेटा कॉलेज में या आगे बढ़ते हैं लाइफ में, तो ये जो दो एजुकेशन है, यानी घर की और स्कूल की, वो पूरी लाइफ फिर आप पे रिफ्लेक्ट करती है हाउ इट इज़. सो इट इज़ ऑल अबाउट ड्यूटी, डिवोशन एंड डिसिप्लिन. इसी के आस पास सब कुछ घूम रहा है. दैट इज द फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन. एंड एजुकेशन व्हेन वी टॉक is not just books and your curriculums and syllabus and the exams that you give. Education, when I talk, it is educating yourself for life, learning life sciences. This is the philosophy. So, can you share a success story from your journey of building this school that makes you particularly proud? Like, you feel that it was hard to achieve at that time, but now that you see it, you're happy that you achieved it. Well, I have already told about the inception, about the vision, and how we started. So now, answering this question of yours, what really makes me feel the टेस्ट ऑफ सक्सेस जिसको बोलते हैं, ठीक है, कि सफलता का फल आप बच्चे लोग हैं, हाँ, हमारे बच्चे हैं, जो आप लोग लायक बन के हमारे सामने आते हैं, तो मुझे दैट इज़ द सक्सेस स्टोरी फॉर मी. जब मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ या कोई सक्सेसफुल, एक किस्सा बताता हूँ, एक आपको जस्ट टू नरेट, जस्ट टू टेल यू द नैरेटिव ऑफ दिस, व्हाट आई मीन टू से. एक बार मैं गुड़गांव में रोड क्रॉस कर रहा था, एक लाल बत्ती की गाड़ी, ब्लू बत्ती की गाड़ी सॉरी, वो मारुति स्टीम ऑफिशियल जो होती है, वो आके एकदम से मेरे सामने रुकती है. पीछे का दरवाज़ा खुलता है और एक लड़की उसमें से बाहर निकलती है. लड़की इसलिए बोलूँगा, शी मस्ट बी इन हर 30s, मतलब 30, 31, 28, समथिंग लाइक दिस, मतलब 30 साल से 1-2 साल ऊपर नीचे. और वो बाहर निकल के मेरा पैर छूती है, बाबा सर. एंड आई से ओ टेकन बैक, अरे ये कौन है? एंड शी कम्स आउट and she says, sir, I am the additional commissioner of Gurgaon. And she was an IAS officer, और वो हमारे सिगरा स्कूल से पढ़ी हुई बच्ची थी. उसने रोहनिया से क्लास 12 बाद में आके पढ़ाई की. शुरू से वो सिगरा की बच्ची थी, फिर वो आगे 11th 12th 9th 10th 11th 12th रोहनिया पढ़ी, और वो UPSC एग्ज़ाम करके एंड शी बिकेम IAS ऑफिसर. मुझे लगता है आज वो इतनी सीनियर हो गई होंगी, काफ़ी, ये भी बात है कम से कम 5 साल पुरानी. सो अभी हो सकता है वो कहीं की कमिश्नर या कोई DM या कहीं कुछ बन के बैठी हो. इसी तरह से अब माहिर हैं. सक्सेस स्टोरी ये भी है
कि बहुत बार मैं डोंट टेक इट ऑन योर हेड, अपने सर पे मत लेना, ओके, या यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू नो। कई बार बाद में बेटे हमारे कोई वो क्या बोलते हैं हम लोग मजाक में हूल देने लगेंगे, चलो। सो माहिर है, ठीक। कई जगह लोग मिलते हैं हम लोगों से, फीडबैक मिलता है, और सक्सेस स्टोरी ये होती है कि आपको बोले कोई कि योर सन इज़ डूइंग गुड, आपका बेटा जो है वो अच्छा कर रहा है। कोई पढ़े लिखे एडुकेटेड लोग ये बोलें, बिजनेस वाले ये बोलें, और जो ड्राइवर्स हैं, जो हमारे सपोर्ट स्टाफ की फैमिली है, जब मैं कभी उससे पूछता हूँ कि अरे वो माहिर आपको लेके गए थे, आर्नी लेके गया था, तो खाए पिए तुम? और जवाब क्या मिलता है मुझे? भैया जी आपकी परछाई है। तो दैट इज़ ऑल। वो अपने आप में एक सक्सेस स्टोरी ख़त्म हो गई। इसी तरह हमारी बेटी अलीशा, जो अलीशा है, वो जो ऑनलाइन स्कूल है उसका, वो ऑनलाइन डालिम्स ग्रुप का ही पार्ट है, वो सनबीम वर्ल्ड स्कूल ऑनलाइन। और ये सक्सेस स्टोरी है कि वो अपने आप में इंडिपेंडेंट एफिलिएशंस, कॉग्निया की एफिलिएशन लिया उसने, अमेरिकन बोर्ड की, कैम्ब्रिज की एफिलिएशन ली, हमारे पेरेंट सिस्टम से, किसी एफिलिएशन से, किसी उस चीज़ से उसने बिल्कुल दूरी बनाते हुए और इंडिपेंडेंटली अपना एक ऑनलाइन स्कूल ऐसा इस्टेब्लिश किया जिसमें आज ऑलमोस्ट 700 स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन स्कूल में, एंड 42 कंट्रीज़ के बच्चे उस पर पढ़ते हैं ऑनलाइन स्कूल में। ये एक सक्सेस स्टोरी होती है। आपके जैसे बच्चे आज, टुडे वी आर सिटिंग टुगेदर, टुमारो मे बी 20 years from now, someday you come to see me, कहीं हम मिल गए, ने बोला बाबा सर यू रिमेंबर मी? नो बेटा, आई वॉज देयर इन दैट पॉडकास्ट। अच्छा अभी क्या कर रहे हो बेटा? आई एम अ सीनियर president, vice president, whatever, maybe whatever position you achieve in BBC, in NDTV, in Aaj Tak, in some channel, कोई ऐसा करके, that was the passion we developed in school while during these podcasts, ठीक है? So this will be the success story. So success stories, inspirations, they are always evolving. I really mentioned that. So what was the one subject in school that you loved and that took you no effort to get it right? And what was the one subject that you hated for no reason at all? Well, I have always loved history, itihas, and I have always hated maths. Maths was one hard nut to crack. बाप रे, सब मेरा पीछा छूटा। अभी मैथ्स के लिए कैलकुलेटर है, अभी मैथ्स के लिए तुम बच्चे लोग हो मुझे करेक्ट करने के लिए, और इतिहास का मैं स्टूडेंट हूँ। So what are your views on technology these days? Like every child these days has a phone in their hands, and internet these days has become more of a basic need than a luxury that it was a decade ago. So what do you think this sort of a evolution will take us? Where will it take us in the future? Well, this is, see, technology is also a boon, वरदान. It is also a curse. वरदान भी है, श्राप भी है. Depends on how we make use of it. And टेक्नोलॉजी का मैं खुद बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. और ईज़ ऑफ लाइफ टेक्नोलॉजी से ही आ रही है बेटा. वॉट वी आर डूइंग राइट नाउ इज़ ऑल्सो टेक्नोलॉजी. वी आर गोइंग बियॉन्ड फोन्स. एंड आर्नी जो माहिर है, ये आपको बहुत अच्छे से बता सकते हैं. इन्होंने भी एक इक्विपमेंट रखा हुआ है, ये उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो फ्यूचर ऑफ सेल फोन्स है. हाँ, it's about to come. It's about to reach.
It's called Rabbit R1. It wasn't reviewed very well जब वो निकला था, but right now it has developed because of the community a lot. So it is this small AI device जिसमें जितनी वर्ल्ड की AI सर्विसेज हैं सारी हैं, and then you can also teach it to do many things. For example, I like ordering from Zomato. तो उसको सिखा देंगे, then वो मेरे on behalf ऑर्डर कर लेगा. अभी तुम कितना खाना ऑर्डर करोगे? मैं तो एक ही चीज़ का तो शौक है मुझे, दो चीज़ों का एक्चुअली, वॉचेस एंड खाना, बस यही तो शौक है मेरे. राइट सही है. सो इज इट. So that's all technology. He's so right about it. And technology is no more a luxury. It is something that goes and that has injected in our life, in our day-to-day life. Without technology, now we are as bad as primitive. अभी very recently there was a blackout. वो कुछ प्रॉब्लम हुआ था सर्वर्स का विंडोज में. सो इन जस्ट फ्यू आवर्स भी नहीं, मिनट्स के अंदर वी वेंट बैक इन टाइम फॉर मे बी 30 years और सो. 30 साल पहले की दुनिया में हम चले गए कुछ सेकेंड्स और मिनटों. हैंड रिटन बोर्डिंग पासेस फॉर फ्लाइट. सो दिस इज इट. As a child, what did you dream of becoming? Like as a very small child, like in I think it's class first or second. What did you think that I would become when I grow up? I wanted to be a good human being. ये कोई मैं भाषण के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कोई मोरल लेक्चर भी नहीं दे रहा हूँ. I wanted to be a good human being. I wanted to help people. I wanted to be successful. I still want to be successful. Success has no barriers. Success has no milestones. You are always learning, always been a learner. And overall package, I want to be known as a good human. This is what I wanted to become. This is what I want to achieve by the end of this life. So finally we have come to the बाकी last part. या बाकी तो सब नाश्वर चीज़ें हैं बेटा. बाकी तो एवरीथिंग इज कैन बी वैनिश्ड. एवरीथिंग इज वी कॉल इट इन हिंदी मिथ्या. सो बीइंग अ गुड ह्यूमन इज ऑल अबाउट लाइफ. Finally, we've come to the last part of the podcast, and this is a very fun round. This is a this or that round. It will go very quickly. I'll ask you these questions, and you have to answer very quickly. ओके. Let's start. Coffee or tea? चाय, टी, Books or movies? बुक्स, Movies or music? म्यूजिक, Early bird or night owl? अर्ली बर्ड, Winter or summer? बोथ्स, Fiction or non-fiction? फिक्शन, Solo exercise or group workouts? सोलो, Singing or dancing? सिंगिंग, Beaches or mountains? बीचेस, Video games or board games? बोर्ड गेम्स, Indoor games or outdoor games? आउटडोर, Sweet or savory? ऑलवेज स्वीट. Thank you, sir. I am such a sweet tooth. My God. अभी कल ही तो मैंने ऑलमोस्ट इधर 1 साल से कुछ खाया नहीं था मिठाई में. तो कल मैंने कम से कम ½ किलो मिठाई अकेले खाई. और कुकीज़ भी थे. और कुकीज भी कल was like this. And let me tell you, now your questions are all done. All talking नहीं, is done. I have 2 questions. Okay, because I want to add on something which we did not, talk about that. Very importantly, we must take care of what we eat. पीछे देखो कोविड भी हुआ, आगे फ्यूचर में भी बेटा बहुत सारे ऐसे डिजीज़ महामारियां आएंगी वर्ल्ड में. इन सब चीज़ के लिए जो हमें इक्विप करती है चीज़, दैट इज़ अवर डाइट, दैट इज़ अवर इम्यूनिटी सिस्टम, दैट इज़ अवर इम्यूनिटी. ठीक है. लकीली मुझे कोई कोविड नहीं हुआ एक बार भी, कभी नहीं. लकीली मैं
अभी भी कोशिश करता हूँ कि 60% रॉ फूड खाना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हम सबको स्मॉल मील्स खाने चाहिए। मैं खाने की बात इसलिए ख़ास तौर पे करना चाहता हूँ बिकॉज डाइट इज़ वन थिंग दैट इवन डिटरमाइंस आवर करेक्टर। हमारा करेक्टर भी जो है वो हमारा खाना की आदत हम लोग का डिटरमिन करती है। इसलिए दिस इज़ माई मैसेज of experience for last 42 years or more in sporting life, खेल में एज अ स्पोर्ट्समैन, एज अ फिटनेस लाइफस्टाइल का आदमी, कि डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। 60-70% है हमारी लाइफ का हिस्सा। इसको अच्छे से लीजिए क्योंकि ये हमारा करेक्टरिस्टिक भी, हम कैसे करेक्टर के चरित्र भी हमारा वो डिफाइन करता है। Okay, one advice for aspiring entrepreneurs. हाँ, again, duty, devotion, discipline. Here the meaning changes. Duty means have yourself focused towards not too many things but zero down on one or two things. Devotion means when you zero down, when you are zooming in to a डेफिनेट बिजनेस, एक ख़ास बिजनेस की ओर, तो ड्यूटी यानी कंसिस्टेंसी, लगातार उसमें बने रहिए। डिवोशन उस बिजनेस में, उस चीज़ के अंदर आपका खुद का विश्वास या ट्रस्ट होना चाहिए कि व्हाट आई एम डूइंग इज़ राइट एंड व्हाट आई एम डूइंग इज़, जो दूसरे लोग उसी चीज़ को कर रहे हैं उसको थोड़ा हट के मैं अचीव करने के लिए आगे बढ़ूं। सो ड्यूटी, डिवोशन, डिसिप्लिन इज द मंत्रा फॉर द अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स। Okay, a message you'd like to give to parents and teachers, जो हम लोग के टीचर्स और हम लोग के पेरेंट्स who are watching this. वेल, पेरेंट्स को तो मैं एक चीज़ बोलूँगा, आप प्लीज़ बच्चों को ये मत शिक्षा आप दीजिए कि बेटा मैंने देखो कोई शॉर्टकट ले लिया लाइफ में तो आज मैं कितना सक्सेसफुल हो गया हूँ, मैंने किसी आदमी के पेपर वर्क गड़बड़ किया तो मैं कितना सक्सेस मैंने पा लिया। उसके सामने एक जो नई ब्रीड आ रही है, जनरेशन आ रही है, उसके सामने प्लीज़ अपनी ज़बान को कंट्रोल करके बात करिए। बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा मत करिए। बच्चों के सामने किसी से बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में मत बात करिए। बच्चों को हमेशा पॉजिटिव बातें करिए, बिकॉज़ हम अगर पॉजिटिव बात नहीं करेंगे, हमेशा नेगेटिव बातें करेंगे बच्चों के सामने कि अरे बहुत बुरे दिन चल रहे हैं, अरे बिज़नेस में बहुत घाटा हो गया, अरे मैं ये कैसे करूं, अरे मेरी नौकरी बेकार की है, वो भी वैसी ही डेवलपमेंट होती जा रही है। इसके और भी तरीके हैं समझाने के, उस तरह से उनको समझाइए, बेटा अभी बहुत ख़राब चल रहा है लेकिन मुझे मालूम है मैं मेहनत कर रहा हूँ बेटा, हम लोग आगे बढ़ेंगे। बेटी तुम मेरे बेटा नहीं है, तुम्हारा कोई भाई नहीं है तो क्या हुआ, तुम अपने आप में बेटे से ज़्यादा अच्छी हो। इस तरह करके एक पॉजिटिव चीज़ें बच्चों के साथ, अपकमिंग जनरेशन के साथ करिए, उनको अपना दोस्त बनाइए, उनके साथ समय बिताइए। टीचर्स के साथ ये बोलना है मुझे कि टीचर्स, यू हैव ऑलवेज इंस्पायर्ड। गुरु जो होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट रखता है अपने बच्चों पे, स्टूडेंट्स पे। तो इस चीज़ को बनाए रखिए प्लीज़। आप लोग धीरे धीरे, बहुत से ऐसे हमारे टीचर्स हैं जो कि कोचिंग क्लासेस की तरफ जा रहे हैं, बच्चों के साथ
कोचिंग क्लासेस की वजह से अक्सर कभी कभार पार्शल होते हैं, बायस्ड होते हैं। ये एक टीचर की निशानी नहीं है। आप प्लीज़ अपना बेस्ट बच्चों को दीजिए, क्योंकि ये बच्चे व्हेन दे अचीव समथिंग इन लाइफ they come back to you, they make you feel proud, and God has gifted us to be teachers. हजारों लाखों करोड़ों लोगों में हम चंद लोग हैं जो टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े हैं। हमको ये ख़ास नेमत है भगवान की, खुदा की, ऊपर वाले की, कि हम लोग किसी को ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान से बड़ा कोई भी दान नहीं है, ज्ञान से बड़ा कोई भी सेक्रीफाइस नहीं है। तो इसलिए दिस इज़ फॉर पेरेंट्स एंड टीचर्स। थैंक यू Thank you very much. I hope it was not boring No, it from was my very side. I tried my best to,